दिस इज इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 2.6। क्या दिया है? H2S गैस इज टॉक्सिक गैस, है ना। H2S का यदि 2 ppm हो तो हेडेक होता है और 10 ppm हो तो डेथ होता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉर्मली नोन एज टॉक्सिक गैस। ये एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकता है। तो H2S is again, H2S is one of the toxic gas, and see, with rotten egg like smell is used for quantitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molal, then calculate Henry's law constant. So this is normally known as molality is given. Molality is given that this molality is 0.195. It is given. इसका मतलब क्या होता है? 0.195 मोल of H2S dissolved in 1000 ग्राम of solvent. ये तो पता चल गया with the help of definition. 0.195 mole of H2S dissolved in 1000 gram of solvent. तो mole of H2S is 0.195. मोल ऑफ वाटर के लिए क्या करने का? 1000 अपॉन में 18 तो 55.5। क्लियर? नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू मोल ऑफ H2S अपॉन में टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S मतलब मोल ऑफ H2S अपॉन में टोटल मोल इज इक्वल टू 0.195 और नीचे क्या आएगा? 55.55 प्लस 0.195। सॉल्व किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S is 0.00349। ये पहले जैसा है, इसमें कोई नया नहीं है। Now according to Henry's law, P is equal to KH into X. P is equal to KH into X. तो KH is equal to P upon X. तो what is P? तो this is at STP. इधर STP दिया हुआ है, यहाँ पे STP दिया है तो 1.013 into 10 raised to 5 पास्कल और नीचे मोल फ्रैक्शन है चाई, तो चाई की वैल्यू क्या है? 0.195 और ये 55.55 ये वाला। ठीक है, सॉल्व किया तो KH is equal to 2.89 into 10 raised to 7 पास्कल। नाउ KH is equal to पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अपॉन में मोल फ्रैक्शन। तो H2S की वैल्यू क्या दी है? एट STP 0.987 तो नीचे 0.0035 तो KH is 282 बार। मतलब यदि पास्कल में लेना हो तो 2.89 इंटू 10⁻⁷ और बार में तो 282। तो दिस इज कंप्लीट KH वैल्यू इन केस ऑफ एट सी बार एज वेल एज वी कैन से दैट पास्कल, है ना। तो H2S क्या है? H2S, तो H2S इज अगेन वी कैन से दैट सी टॉक्सिक गैस। तो व्हाई इट इज टॉक्सिक गैस? बिकॉज इफ concentration of H2S is, because if concentration of H2S is 2 ppm then headache will take place, and suppose it is 10 ppm then we can say that death will occur. Clear? और मोल फ्रैक्शन तो आपको पता ही कैसे निकालना है ना। तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.6। आपको याद रखने का, यदि प्रेशर नहीं दिया है एट STP 1 see pressure to 1 atmosphere is equal to 1.013 into 10⁵ pascal. Similarly, in terms 1 atmosphere is equal to here 0.987 1 atmosphere जो भी डेटा दिया है तो this one is again for 1 atmosphere. तो 1 atmosphere in terms of pascal, 1 atmosphere in terms of bar. Clear? Now question number 2.7, Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10⁸ pascal at 298 Kelvin. Now calculate quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmosphere CO2 pressure at 298 Kelvin. Clear? Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10⁸ pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmosphere CO2 pressure at 298 Kelvin. तो देखो KH दिया है, it is Henry constant।
1.67 into 10⁸ Pascal it is given. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो 2.5 एटमॉस्फेयर, लेकिन एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट कर देने का रीजन क्या है? देखो यूनिट शुड बी सेम, ये पास्कल में कन्वर्ट कर देने का। तो 2.5 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵, किसको हम लोगों ने चेंज करके ऐसे लिखे, साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। तो सी दिस डेटा इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू scientific form and this one is commercial form. Clear? A molecular mass of CO2 is 44. कैसे? C plus 2O, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 into 2 32 plus 12, तो 44 ग्राम पर मोल will come. Clear? 44 ग्राम पर मोल will come. तो this is molecular mass. Molecular mass of again we can say that CO2. अब हेनरीज लॉ आपको पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is equal to KH into mole fraction of CO2. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is equal to KH into mole fraction of CO2. Text of CO2 is partial pressure of CO2 upon KH. तो 2.5 into 101325 पास्कल, नीचे 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल केल्सी से सॉल्व किया तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल गया पास्कल अपॉन पास्कल। तो यहाँ पे दिस इज यूनिटलेस, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज यूनिटलेस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, अभी तो मोल फ्रैक्शन आया, अब आएगा नंबर ऑफ मोल्स। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ वाटर, तो 500 ml में 500 ग्राम, बिकॉज सी डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर मीटर, 1 ग्राम नॉट मीटर बट 1 ग्राम क्यूब इज दैट। क्लियर? ना मोल ऑफ वाटर तो कितना दिया है, 500 ml दिया हुआ है, तो 500 अपॉन में 18 तो 27.78, तो हियर 500 इज गिवन है ना वॉल्यूम। चलो अब मोल ऑफ CO2 नीचे क्या आएगा, 27.78 इज देयर एंड देन आफ्टर 1.517 into 10⁻³ क्लियर हुआ कि नहीं? अब मुझे क्या करना है, सी यहाँ पे आपको नेक्स्ट वन इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई किया, हियर मीन सी, तो मोल ऑफ CO2 इज 42.1 into 10⁻³ विल कम। क्लियर हुआ कि नहीं? अब मुझे क्या करने का, सी here mole of CO2 is equal to mass of CO2 upon molar mass of CO2. Clear हुआ कि नहीं? Here we can say that upon what will happen, molar mass of CO2. चलो mole of CO2 is 42.14 into 10⁻³, mass of CO2 नीचे molecular mass, इसको इधर ले लो, मल्टीप्लाई किया, याद गया mass of CO2 is 1.854 is there। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दिस वन इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देखो मोल मतलब क्या आता है, तो मोल मींस वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, मोल मींस वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना, मतलब मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? और यहाँ पे देखो वॉल्यूम 500, तो दिस 500 ml is again means given। क्लियर हुआ कि नहीं? 500 ml is again we can say that means given। In this way we can find out mass of CO2। तो याद रखना है मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट विल बी गिवन। करेक्ट? सी क्वेश्चन नंबर 2.8, the vapor pressure। Now we will discuss here the vapor pressure of pure liquid A and B. Now vapor pressure of pure liquid A and B are 450 700 mm of mercury at 350 Kelvin respectively। vapor pressure दिया है, find out composition of liquid mixture। आपको composition निकालना है liquid mixture if total vapor pressure is 600
total vapor pressure is again means 600 mm of mercury. Also find composition of vapor pressure. चलो, total pressure is 600. This is P total. PA0 is 450. PB0 is 700 mm. So on the basis of this, we can say that this one is solvent and this one is solute. Now for liquid A and B, ये formula है. P is equal to Pa plus Pb. Here P is equal to Pa plus Pb. तो Pa0 into chai A plus Pb0 into chai B. अब आपको पता है chai A plus chai B is equal to 1. Here chai B is equal to 1 minus chai A. तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू रख दी. क्लियर? अब सब डेटा रखो. P total is given 600, Pa0 450, chai A, Pb0 is 700, 1 minus chai A. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो here means chai A is equal to 0.4. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई करना है. देखो 700 ये कितना आ जाएगा, थोड़ा सा बता देता हूं. तो 450 chai A 700 माइनस 700 चाहिए, तो 700 चाहिए 450. सिंप्लीफाई करो तो चाहिए इज इक्वल टू 0.4. नाउ वी नो दैट चाहिए प्लस चाई बी इज इक्वल टू 1. तो देयरफॉर चाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस चाहिए तो 0.6 आ जाएगा. क्लियर? नाउ इन वेपर फेज सी चाहिए इज इक्वल टू पीए अपॉन में पीए प्लस पीबी. दिस इज पी टोटल. वेपर फेज की यदि मैं बात करूं तो हियर PA is equal to chai A into P total. तो चलो PA upon में PA plus PB. तो what is PA? PA0 into chai A and PA0 chai A plus PB0 chai B. सब वैल्यू रख दो. सॉल्व किया तो chai A is equal to 0.3. फिर से chai B 1 minus chai A वैल्यू रखा. इन वेपर फेज chai B is equal to 0.7. क्लियर हुआ? तो दिस इज राउल्स लॉ in case of we can say that volatile condition, है ना. Now next one 2.9. तो vapor pressure of pure water at 298 Kelvin 23.8 mm of mercury, 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. To calculate the vapor pressure of for this solution and its relative lowering. तो see weight ये B क्या है? B is urea and A is water. तो weight of C here we can say that urea is 50 gram and molecular mass of urea is 60. यूरिया का जो फॉर्मूला है that is NH2 and CO. NH2 is there. Clear? ऐसे weight of solvent मतलब water 850 and molar mass of water is 18. So now mole of urea is weight upon molecular weight. तो 50 upon 60 तो 0.83 mole will be there. ऐसे mole of water तो weight upon molecular weight तो 47.2 will be there. Now here we will calculate mole fraction. तो mole fraction of urea is equal to mole of urea upon total mole. वैल्यू रख के सॉल्व किया तो mole fraction of urea is 0.017 will be there. अब उसने बोला रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो इतने को हम लोग क्या बोलते हैं? सी. तो दिस इज नॉन एज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया. PA0 कितना है? 23.8. इट इज गिवन. PA0 is 23.8 and PA you have to calculate PA. So after simplification PA will be 23.4 mm is there. Clear? ये सब बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए. नाउ नेक्स्ट 2.10. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm. देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 हियर वी कैन से दैट mm ऑफ मर्क्यूरी इज 99.63. थोड़ा सा अलग है. हाउ मच सुक्रोज, आपको सुक्रोज पूछना, इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स 100 डिग्री. तो देखो PB0 99.63 गिवन वाटर सॉल्वेंट. PB is 100 डिग्री सेल्सियस.
तो डेल्टा टीवी मीन्स टीवी माइनस टीवी 0. तो डेल्टा टीवी is point, here we can say that 37. Now this is formula. So delta TB is equal to, this is formula, delta TB is equal to KB into WB into 1000 upon MB into WA is there. तो फिर से here means A and B. So what is, we can say that A is nothing but, here we can, A is nothing but it is normally known as water, and B is nothing but it is, again we can say that sucrose is there. Sucrose means C12H22O11. सबकी वैल्यू पुटअप कर दो. Here means weight of sucrose will be 121.67 will come. Here 121 point, we can say that 67 will be there. Clear? Simplify sucrose. तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11. क्लियर? और बाकी सबका मॉलिक्यूलर वेट है ऑल दैट. तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ठीक है. नाउ दिस इज 2.11. हियर 2.11 and this is second last question of in-text question answer. 2.1 calculate mass of ascorbic acid. आप एक फॉर्मूला है विटामिन सी C6H8O6 to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree Celsius. Kf is 3.9. Now Kf is 3.9 Kelvin kilogram per mole. Delta Tf 1.5 degree. Weight is 75 gram. तो ये क्या है? एसिटिक एसिड. तो दिस इज सॉल्यूट. दिस वन इज सॉल्यूट. ना मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यदि निकालना है तो C6H8O12 मल्टीप्लाई करके प्लस करो 176 ग्राम पर मोल विल कम. नाउ डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू C. डेल्टा TF का फॉर्मूला. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m मोलालिटी. फॉर्मूला रख दो और C इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग फॉर्मूला रखेंगे. तो वेट ऑफ सॉल्यूट डेल्टा TF इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट नीचे KF इंटू 1000. तो वेट ऑफ सॉल्यूट विल बी 19800. सॉल्व किया तो 5.077 ग्राम विल कम. यू हैव टू रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ स्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 इज देयर. क्लियर? और मोलालिटी तो वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये तो सॉल्यूट आता है और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम आता है. ठीक है. चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंटेक्स. तो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by solution prepared by dissolving. Here we can say that 1 gram of polymer of molar mass. This is molar mass. देख पॉलीमर है ना, पॉलीमर ये पूरा चैप्टर है. तो पॉलीमर, पॉली मीन्स नंबर और मर मीन्स मोनोमर. मर मीन्स मोनोमर. पॉली मीन्स नंबर और मर का मतलब मोनोमर. तो whenever 2 or more than 2 monomeric unit will combine with each other, then here polymer will form. Clear? So normally see molecular weight of polymer will be always high. Therefore this data will come. Here weight of solute, B means solute आता है. Here we can say that B जहाँ भी लिखो मतलब solute. तो weight of solute is 1 gram, molar mass this one. This is gaseous constant. And volume 450 into 10⁻⁻6 ml है ना, ml उसको हम लोग ने कन्वर्ट किया है. तो पाई B इज इक्वल टू हियर NRT. होता क्या है? पाई इज इक्वल टू CRT.
तो C मतलब कंसंट्रेशन N/V, तो पाई इज दिस वन। अब N है तो यहाँ रख दिया मैंने। अब वैल्यू रखो, सबका वैल्यू रखना है। हियर में WB इज 1 ग्राम, R is 0.0821, टेम्परेचर इज 310, 37 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने का। 310, हियर मॉलिक्यूलर मास एंड वॉल्यूम इज 450। सॉल्व किया तो पाई इज 30.95 पास्कल विल बी देयर। तो दिस विल बी अगेन मीन्स आंसर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो दिस इज वी कैन से दैट फाइनल आंसर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर।